So far we have discussed about objectives, okay, and in these objectives we have discussed that there are four taxonomies or domains of objectives which must be considered while developing any types of assessment for the students, like classroom tests, observation techniques, and any other things. Cognitive domain or affective domain, psychomotor domain, and solo taxonomy. These all domains are very much important as far as your paper is concerned, and you will see that most of the questions belong to these taxonomies. So you all people are requested and directed to learn these taxonomies by heart, and don't forget to learn these taxonomies and their levels. And you are not uh, supposed to modify or change the order of the levels of these taxonomies. Okay, so now we will discuss second component of the curriculum, which is about subject matter content. क्या आपने जो चीज बच्चों को पढ़ानी है वो किया? ऑब्जेक्टिव्स का तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि कितनी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, बीइंग ए टीचर यू मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू मे टीच to the students and what type of subject matter the curriculum must be comprised of, and what type of study material you must deliver to your students. Okay, तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि what type of content is available for you to teach in your classes. So subject matter or content of curriculum, there are 10 basic characteristics of that content or course or study material or curriculum which you may deliver to your students. ऑब्जेक्टिव्स का तो आपको पता चल गया कि इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स आपने एस्टेब्लिश करने होते हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने मेहनत करनी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो स्टडी मटेरियल या जो कंटेंट बच्चों को डिलीवर करने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। दीज आर 10 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड करिकुलम। नंबर 1 इज सेल्फ सफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आप जिस लेवल पे भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल आपके हाथ में हो या बुक हो या हैंड आउट हो, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, बड़ा जामे किस्म का हो, वो कंटेंट पढ़ने के बाद बच्चों को कहीं और से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग यू करिकुलम development and instruction in education, and I have developed this study material for you and this PowerPoint presentation for you, and I hope so that this content which I am delivering you is self sufficient and comprehensive. Self sufficient या self explanatory वो content होता है जो खुद ब खुद आपको बताए कि मैं खुद ही सफिशिएंट हूँ, मेरे बाद आपको कहीं और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव हो, शामिल हो, उसके अंदर हर चीज शामिल हो, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ curriculum, that curriculum which or content which you are going to deliver to your students, it must be self sufficient and comprehensive. Number 2 is significant and useful. The study material or content or curriculum you are teaching to your students must be significant and useful. Significant means its applicability, its usefulness, its worth, its importance, ठीक है। आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो वेस्टफुल मटेरियल ना हो, ऐसा मटेरियल पेश ना करें जिसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, when I am teaching you curriculum development and instruction, and I am teaching you this material from this self-made presentation जो मैंने स्पेशली खुद डेवलप किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, करिकुलम की प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये आपके लिए बड़ी यूजफुल साबित होगी, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर अच्छी चीजें इंक्लूड की गई हैं जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज इस स्लाइड के अंदर या इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको नजर नहीं आनी चाहिए
जो कि अनयूजफुल हो या वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, या ऐसा मटेरियल हो जो बिल्कुल ऐसे रबिश सा हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर चीज बड़ी सोच समझ के तैयार की गई है इस प्रेजेंटेशन में। इसी तरह बीइंग अ गुड टीचर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप significant and useful content for your students which you are going to deliver them, because it is a very noble profession, it is a very and extreme level of honesty and sincerity is needed in this profession. देखें, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़ा मुखलिस होना चाहिए। थोड़ा पढ़ाएं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। टाइम पास तो सब लोग कर लेते हैं, टाइम पास करना बहुत आसान है आजकल के दौर में। बड़ी कहानियां हमारी जिंदगी की जो हम स्टूडेंट्स को सुनाना शुरू करें तो कई घंटे गुजर जाएं, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट अवर टाइम और अवर स्टूडेंट्स टाइम एज वेल। हम जो भी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनकी लर्निंग की प्रमोशन के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए, ठीक है। सो द कंटेंट विच यू आर डिलीवरिंग योर स्टूडेंट मस्ट बी सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल, ठीक है। तो इसी तरह ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखी हुई हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिबल और इम्प्लीमेंटेबल। ऐसा कंटेंट हो जो फिजिबल हो, जो आप बच्चों को पढ़ा भी सकें, इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये नहीं कि आप उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर सके, वो फिजिबल ही ना हो, उसके अंदर ऐसी चीजें हो जो आप पढ़ा ही ना सके, तो ऐसे करिकुलम का, ऐसे कंटेंट का कोई फायदा नहीं है जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना कर सके। अब मैं इधर आपके सामने, ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की टोटल 23 स्लाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 स्लाइड्स बना लेता तो क्या वो मेरे लिए फिजिबल था कि आपको मैं लिमिटेड टाइम में वो आपको मैं प्रेजेंट करता? तो ऐसा नहीं होता। हम थोड़ा पढ़ाएं लेकिन ऐसा मटेरियल दें जो फिजिबल हो, इम्प्लीमेंट किया जा सके, डिलीवर किया जा सके, डिलीवरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखा करें कि जो भी आप नोट्स बनाएं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें क्लास में। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वैलिड और रिलायबल हो। आप अपने कंटेंट में, करिकुलम में जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं, दीज ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी वैलिड एंड रिलायबल। स्टूडेंट may confidently rely on these information which you are conveying them. मिसाल के तौर पे, इन माय प्रेजेंटेशन आई एम वेरी वेल कॉन्फिडेंट दैट माय ऑल इंफॉर्मेशन आर हाईली रिलायबल फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें कोई ऐसी चीज मैं नहीं डालता जो गलत हो, ठीक है, वैलिड होगी इंशाल्लाह, ठीक है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जो वैलिड है, जिससे पर्पस फुलफिल हो रहा है। वैलिड का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे पर्पस फुलफिल हो जाए। रिलायबल का मतलब ये है कि जिस पे रिलाई किया जा सके, उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। तो अब हम जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो वैलिड भी है और रिलायबल भी है। मजीद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम रिसर्च में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। Number 5 characteristics of curriculum is that as per needs, interest and levels of the students, आप ऐसा स्टडी मटेरियल प्रेजेंट करें जो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग हो। जैसा कि ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आई थिंक सो एंड यू विल आल्सो agreed with my this opinion that this presentation is as per your needs and it is provoking your interest level, okay। तो आपको ऐसा मटेरियल पेश करना चाहिए जो बच्चों की जरूरत को भी पूरा करे और उनके अंदर दिलचस्पी का जो आंसर है वो भी बढ़ाए। नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नेबल। ऐसा मटेरियल पेश करें जिससे उनकी लर्निंग में इजाफा हो, उससे वो कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। ऐसा मटेरियल पेश ना करें, ऐसा करिकुलम ना डिजाइन करें जिससे लर्निंग ना हो, बस ऐसे ही खाना पूरी की गई हो, सफ़े भरे गए हों, स्लाइड्स भरी गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 7 बैलेंस्ड और सीक्वेंस होना चाहिए। अब जितनी भी मेरी स्लाइड्स आपने देखी हैं, पहली स्लाइड से आखिरी स्लाइड तक आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, एक बैलेंस नजर आ रहा है। ये नहीं कि जो पहले चीज पढ़ानी थी वो एंड पे मैं पढ़ाऊंगा, जो एंड पे पढ़ानी थी वो पहले पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। तवाज़ुन होना चाहिए आपके स्टडी मटेरियल में। डेवलप होल पर्सनैलिटी। ऐसा स्टडी मटेरियल हो और जो आपके स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपका रोल प्ले करे। नंबर 9 है फ्लेक्सिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कहूं कि माय प्रेजेंटेशन इज 100% sufficient for you to prepare your exams, it is not a correct thing, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए,
और गुंजाइश होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर स्टडी मटेरियल। तो आप ये ना कहें कि जी इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपडेट्स आती हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको हम अपना इनकॉर्पोरेट करते जाएं अपने स्टडी मटेरियल में। अब मिसाल के तौर पे ये जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें मैं और स्लाइड्स डाल सकता हूँ जो मुझे जरूरत महसूस होगी कि कुछ और स्लाइड्स इसमें डालनी पड़ेगी, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी मेरी प्रेजेंटेशन, ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 10 है सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा स्टडी मटेरियल पेश करें जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, जो आपकी कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। कोई भी ऐसी चीज पेश ना करें जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, उसको अप्रूव ना करे, रेजिस्टेंस आए और हमारे कल्चर के खिलाफ कोई चीज हो तो लोग माइंड कर जाते हैं। ठीक है, सो दीज वर द 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम विच मस्ट बी kept in your mind while developing curriculum for your students। जी, आपको ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं इस वक्त? तो हम आगे मूव करते हैं। सर नंबर जी 4 सर, दोबारा clear है। एक्सप्लेन करें, डिस्कनेक्ट हुआ। जी डॉक्टर शफीउल्लाह साहब, वैलिड और रिलायबल, मैंने कहा कि वैलिड और रिलायबल का ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको रिसर्च के लेक्चर में दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखें कि आपका करिकुलम वैलिड उस वक्त होगा कि ऐसा करिकुलम हो जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर जाए। जिस पर्पस के लिए वो करिकुलम बना है, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए तो हम कह सकते हैं अवर कंटेंट इज वैलिड। और अगर आपका करिकुलम पढ़ने के बाद बार बार सेम रिजल्ट्स आ रहे हो, कंसिस्टेंसी हो, उस पर रिलाई किया जा सके, तो दिस इज कॉल्ड रिलायबल करिकुलम। और जी कौन पूछना चाह रहे हैं? सर क्लियर है। चलें, शाबाश, ठीक है। ये हम बात करें जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है करिकुलम का, दैट इज कॉल्ड करिकुलम का सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, कि उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ा है, टेक्सोनॉमीज को। अब हम कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं। इसमें पहली स्लाइड हमने पढ़ी है कि आपका कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। अब हम मजीद पढ़ेंगे कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कितनी टाइप्स का होता है वो देख लेते हैं। सो दीज आर टोटल, हाँ, these are 6 major types of curriculum which you people must learn as far as your paper is concerned, or being a teacher of education system we must know different types of curriculum। ठीक है, ये जो आपका सेकंड कंटेंट, सेकंड कंपोनेंट है ना करिकुलम का, उसमें ये डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। कंटेंट जो था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी 10 है, और टाइप्स जो है मेजर वो ये 6 हैं। These are 6 types of curriculum which may be presented to our students। Number 1 is core curriculum, which is also called explicit curriculum। Number 2 is सर यहाँ पे तो 7 लिखी हुई है सर। जी भाई, मेरे कौन बोला है, क्या बोला है, जरा बताएं। सर यहाँ पे 7 टाइप्स हैं। सर यहाँ पे आपने टाइप्स का कहा है ना 6 हैं, तो स्लाइड के अंदर सर 7 दी हुई हैं सीरियल वाइज। नीचे 7वीं शायद मुझे नजर नहीं आ रही, कौन सी है वो? एक्स्ट्रा करिकुलम। अच्छा, चलें ठीक है, वो मुझे नजर नहीं आ रही 7वीं टाइप मेरे लैपटॉप में। चलें, नजर आ जाती है अभी, उसको भी सर ये लास्ट में है। लास्ट में कौन सी है भाई? वो लास्ट में पढ़ेंगे ना। ये सर एक्स्ट्रा करिकुलम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम, बिल्कुल ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम व्हिच वी मस्ट नो अबाउट दीज आर कोर करिकुलम, एक्सप्लिसिट करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, हॉरिजॉन्टल करिकुलम, वर्टिकुलर करिकुलम, हिडन करिकुलम और इम्प्लिसिट करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम हैं क्या।
और अक्सर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे याद है मेरा एक दफा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इंटरव्यू था लेक्चरर का, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। वहां पे डॉक्टर इब्राहिम खालिद साहब आए हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने हमें पीएचडी में भी पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज हिडन करिकुलम। इस हिडन करिकुलम के बारे में उन्होंने पूछ लिया। वो तो चलें शुक्र है आता था, इज्जत बच गई। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप तो भाई टीचर हैं, आप लेक्चरर के लिए आए हुए हैं, आप हेडमास्टर बनेंगे, तो आप बताएं करिकुलम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग्स। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम। Number 1 is core curriculum or explicit curriculum. Number 2 is integrated curriculum. Number 3 is activity based curriculum. Number 4 horizontal curriculum. Number 5 vertical curriculum, and number 6 hidden curriculum or implicit, or number 7 extra curriculum. Excuse me, sir. जी सर सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं ना। सर गुजारिश ये है कि ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं करिकुलम की, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं या जस्ट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं? जी आपका अजीम साहब ने, अच्छा मलिक आमिर हयात साहब ने क्वेश्चन पूछा है। जी सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ग्लोबल टाइप्स भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करिकुलम की यही टाइप्स होती हैं। इसको सिर्फ आप पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दीज आर ग्लोबल लेवल टाइप्स ऑफ करिकुलम। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पे एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ही करिकुलम बनता होता है। आप बच्चों को पढ़ाना क्या सही चाह है। रहे हैं, कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मार्केट डिमांड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन करते रहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती जी हैं, अब हमारी मर्जी है कि हम कौन सा करिकुलम सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जी यही सर। टाइप्स हैं, मजीद भी टाइप्स होंगे, लेकिन मेजर यही टाइप्स हैं। सो वी आर हियर टू डिस्कस दीज 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पहली टाइप है कोर थैंक यू। करिकुलम, सेकंड है इंटीग्रेटेड करिकुलम, थर्ड है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, चौथी है हॉरिजॉन्टल करिकुलम, वर्टिकल करिकुलम, हिडन करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम। तो कोर करिकुलम क्या होता है, कोई बताएगा कोर करिकुलम? सर बेसिक्स के मुतालिक, सर कोर के मुतालिक किसी भी चीज की ना, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज, जो कंपलसरी होते हैं उनको कोर करिकुलम कहा जाता है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं विच वी कैन नॉट इग्नोर एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये कोर करिकुलम कहलाते हैं। और एक्सप्लिसिट करिकुलम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट और कंपलसरी होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? सर इसमें डिफरेंट जो है वो मिक्स किया जाते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। जब डिफरेंट कोर्सेज को एक ही बुक में मर्ज कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। आप छोटे लेवल पे देखें, जो साइंस की बुक होती है उसके अंदर फिजिक्स के टॉपिक्स भी होते हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स भी होते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी होते हैं। तो उन साइंस के तीनों टॉपिक्स को एक ही बुक में मर्ज कर दिया जाता है, इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाता है। जैसा कि केजी क्लास आप देख लें, उसमें उर्दू और इंग्लिश और काउंटिंग सारे एक ही बुक में डाल दिए जाते हैं। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक ही मेजर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। नाम से जाहिर है ऐसा करिकुलम जिसमें एक्टिविटीज करवाई जाएं, जैसा कि वो बच्चों को एबीसी पढ़ाने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स दिए जाते हैं, 1-2 पढ़ाने के लिए, या साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाने के लिए डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो ऐसा करिकुलम जिसमें एक्टिविटीज करवाई जाए और उससे बच्चों को सिखाया जाए, तो वो कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। नेक्स्ट है 4 और 5, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजेंटल करिकुलम और वर्टिकल करिकुलम। कोई बंदा बताना चाहेगा
What is the difference between these two types of curriculum, horizontal and vertical, please? हाँ जी, कोई बताएगा? डॉक्टर शफीउल्लाह साहब किधर चले गए हैं? मैं बता दूं आपको। सर हॉरिजेंटल में तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं होंगे जो स्टूडेंट सेलेक्ट जी करते हैं। सर बताओ। ओ नहीं नहीं मैडम साहबा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाली बात नहीं है। और कोई बताएगा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि सब लोग इन टच रहिएगा। आज हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। अभी हम 16 नंबर स्लाइड पे हैं। हम सारी स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे चाहे 10 बज जाए, ठीक है? आपने स्टे विद मी, सोना नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल करिकुलम एंड वर्टिकल करिकुलम। इंटीग्रेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कंटेंट्स विद इन अ पर्टिकुलर ग्रेड लेवल और क्लास, ठीक है? vertical curriculum organization of contents according to the sequence and continuity of learning over time or different classes। अगर हम एक ही क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में इंटरलिंक करें या डिफरेंट कंसेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करें और वो सारा कोर्स एक ही क्लास में पढ़ा दिया जाए तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल करिकुलम। मिसाल के तौर पे आपने 8वीं क्लास में एक साइंस की बुक पढ़ाई बच्चों को, उसके अंदर फिजिक्स के कंसेप्ट्स भी हैं और केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स भी हैं और बायोलॉजी के कंसेप्ट्स भी हैं, लेकिन उन सब को आपने इंटरलिंक करके कह दिया कि दिस इज साइंस एंड दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है? जब आप एक ही क्लास में तमाम चीजें पढ़ा जाएं और उनको आपस में इंटरलिंक करके पढ़ा जाएं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल करिकुलम। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल करिकुलम। जब ग्रेड लेवल सेम हो एक ही क्लास में, लेकिन अगर आप 9th और 10th को देखें, 9th में आपने केमिस्ट्री की कुछ चीजें पढ़ाई और 10th में फिर केमिस्ट्री की कुछ चीजें पढ़ा ली, लेकिन जो 10th में पढ़ाई जाने वाली केमिस्ट्री है उसका लिंक होना चाहिए 9th में पढ़ाई जाने वाली केमिस्ट्री के साथ। बायोलॉजी आपने जो 9th में पढ़ाई है उसका लिंक होना चाहिए 10th के साथ। यानी डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट क्लासेस में अगर आप लिंकेज क्रिएट करें करिकुलम में तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल करिकुलम, ठीक है? अगर आप 9th और 10th के कोर्स को आपस में इंटरलिंक करें, यह वर्टिकल करिकुलम। लेकिन अगर सेम क्लास में विद इन द सेम ग्रेड लेवल आप डिफरेंट कंसेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करते हैं तो ये बन जाती है हॉरिजॉन्टल करिकुलम। क्लियर होगी बात आपको? सर जी सर क्वेश्चन है। जी बताएं। सर ये जिस तरह आपने इसको बताया है हॉरिजॉन्टल को, तो ये तो फिर इंटीग्रेटेड और हॉरिजॉन्टल एक जैसे हो जाएंगे कि एक ही सब्जेक्ट ठीक है आपने, के अंदर जाना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इज अनदर नेम ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इज अनदर जी नेम सर। ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, क्योंकि इंटीग्रेटेड करिकुलम में भी हम डिफरेंट कोर्सेज को, सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट कोर्सेज को यकजा किया जाता है एक ही बुक में, लेकिन उनका आपस में इंटरलिंक का जरूरी ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है? लेकिन हॉरिजॉन्टल में जब उनको एक ही क्लास में पढ़ाएंगे तो उनका आपस में लिंकेज हम रखेंगे, लाजमी लिंकेज का ख्याल रखा जाता है। इसमें जरूरी नहीं होता कि लिंकेज, हो सकता है फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो बायोलॉजी के साथ लिंक ना कर रहे हो, बायोलॉजी के जो कंसेप्ट हैं वो केमिस्ट्री के साथ लिंक ना कर रहे हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल करिकुलम में जो कंसेप्ट हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल करिकुलम। लेकिन अगर आप ये लिंकेज क्लास टू क्लास बनाएंगे तो वो बन जाएगा वर्टिकल करिकुलम, ठीक है? ओके हो गया सर, थैंक यू। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज हिडन करिकुलम। कोई बता सकता है? बड़ा जबरदस्त इसका मतलब है। सर जो कल्चर रिलेटेड होता है।
जी कल्चर के हवाले से, ये कल्चर से हम अडॉप्ट करते हैं। नहीं, और कुछ बताएं। सर कल्चर में तो फिर डिफरेंट, जैसे इधर लिखे हुए एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीफ, बिहेवियर वगैरह आ जाते हैं। नहीं, और कुछ बताएं। तो और फिलहाल नहीं समझा। चले मैं आपको बता देता हूँ, हिडन करिकुलम का दूसरा नाम है इम्प्लिसिट करिकुलम। इसका मतलब ये होता है कि जो बिलीव्स और वैल्यूज और जो फिलॉसफीज आप डायरेक्टली बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो आप उनको किसी ऐसे अंदाज में उनको कन्वे करें कि उनको इतना खास पता ही ना चले कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों के एटीट्यूड्स और मुआशरती वैल्यूज और बिलीव्स और बिहेवियर्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे असेंबली है, ठीक है, असेंबली में आप उनको कुछ और भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, अपने सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स के बारे में बता रहे होते हैं, जो उनका डायरेक्ट करिकुलम नहीं होता, ये हिडन करिकुलम होता है। ये इसका उनके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, आपके जैसे आपने कहा कल्चरल नॉर्म्स हैं, और इस तरह रिलीजियस जो चीजें होती हैं, मजहबी चीजें, दीनी चीजें, ठीक है, या कोई एक खास किस्म की आप फिलॉसफी उनको बताना चाह रहे हैं, जो आप डायरेक्टली करिकुलम में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो वो आपका कहलाता है हिडन करिकुलम। ठीक है, और ये सर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अंदाज से ये हिडन करिकुलम शामिल किया जाता है बच्चों के कोर्स में। लेकिन ये जो आपके बिलीव्स होते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, जो हिडन वे में बच्चों को सिखाई जा रही होती हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता चल रहा होता कि उनको ये जो चीज़ें सिखाई जा रही है इनका मकसद क्या है। फिर लेटर ऑन स्टेज पे उनको पता चल जाता है कि हमें ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सिखाई गई है, या इसको कोई पॉलिटिकल मकसद था या कोई रिलीजियस मकसद था। तो ऐसा करिकुलम जो हिडन वे में बच्चों को डिलीवर किया जाए, डायरेक्ट हमारे किसी कोर्स का हिस्सा ना हो, दैट इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। जिस तरह आपकी सकाफतें हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जैसे आप स्कूलों में फंक्शंस करवा लेते हैं, टैबलोज और मुख्तलिफ किस्म के मुकाबला जात होते हैं, उनमें आप काफ़ी चीज़ें बच्चों को सकाफत के बारे में बता रहे होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, लेकिन वो चीज़ें डायरेक्टली आप करिकुलम में शामिल नहीं करते, उनको मुख्तलिफ अंदाज से आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द वेज टू डिलीवर योर हिडन करिकुलम। नंबर 7 नंबर पे जो करिकुलम लिखा हुआ है वो मुझे नजर नहीं आ रहा स्लाइड, लेकिन मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा करिकुलम है। एक्स्ट्रा करिकुलम से मुराद जो आपके बच्चों की पर्सनालिटी के अदर एस्पेक्ट्स को डेवलप करे, जैसे उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है, जो लेयर एक्टिविटीज हैं, बच्चों को आप टूर पे ले जाते हैं, ट्रिप्स पे ले जाते हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इसको एक्स्ट्रा करिकुलम भी कहा जाता है। सो दीज आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ करिकुलम्स एंड होप सो दैट दीज ऑल टाइप्स आर वेरी क्लियर टू यू। मजीद आप इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये कंसेप्ट क्लियर मजीद भी हो जाएंगे। थैंक यू। अब हम कहाँ पहुंच गए ये देखें। अगर मैं आपको बैक ले जाऊं, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी, ठीक है, ये वाली, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने कर लिया। जो करिकुलम का कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स 10 मैंने आपको बताई है और टाइप्स मैंने आपको 7 बताई है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज और फिर हम एवेल्युएशन अप्रोचेस की बात करेंगे।